Assalamu alaikum students. Today we will study October number current paper variant 1 3. After that we will discuss 1 2 as well, variant 1 2 as well. That is our variant, and try to complete the whole paper today. Okay, going to be start. Okay, the question is that a flower shop has a room that has air conditioning system. It is used to keep the room at a constant temperature for storing the flowers. The owner uses a keypad to set the temperature for the room. Tick one box to show whether a keypad is an example of input and output. You can give your suggestion on a chat box as well. Okay, you can give your suggestion on a chat box as well. So this is an input device. You said correct. Now we will move further, saying that the owner of the shop enters the Danbury numbers to set the temperature for the room. अच्छा जी, वो कह रहा है Danbury numbers जो है वो इंटर कर रहा है उनके लिए. अच्छा, वो कह रहा है give the binary number that would be stored when a number 24 is entered. तो आपने 24 का क्या देना है? बाइनरी नंबर देना है. क्या देना है जी? 24 का आप लोगों ने बाइनरी नंबर देना है. तो ठीक है, हम लोग बाइनरी नंबर दे देते हैं. तो बाइनरी नंबर की वेटेज के लिए जिस तरह लेट सपोज हम लोग बिगिनिंग से करते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ. लेट सपोज कि इस तरह से आप लोग लेट सपोज लिख लें, और 24 की अगर आपको चाहिए वेटेज तो आप क्या कीजिए, 24 के लिए 16 और 24, बाकी सबको क्या कर दें, 0 कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 24 आ जाएगा. सो यू कैन राइट डाउन ओवर हियर 000 11 and then 000 for 1 marks. Okay, so for 1 marks. Next, saying that you are having give the binary number that would be stored when the Danbury number 101. तो 101 के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, 101 के लिए सबसे पहले आपको 64 को लेना है, 32 को लेना है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 96. 96 के बाद आप 4 को ले लें, 4 को लेने के बाद आप 1 को ले लें, तो आपके पास 101 बन जाएगा. क्या बन जाएगा जनाब, इट विल बिकम 101. ठीक है जी. तो हम ये करते हैं एक और काम कि इसको पूरा लेट सपोज पिक करते हैं, इसको यहां पर ले आते हैं. ओके जी. सो फॉर 1 marks we have performed. Any doubts, anything, any problem? Clear? Now saying that the binary number 000 100 is stored in the register. Give the Danbury number that has been entered for the binary number to be stored. Okay, one of the options that give a mind student, that is 19. That is correct. That is correct. 19, because this is a 16. This is 2 plus 1. It will become 19. For 1 marks, again we have solved this one. Next, the binary number is also given, is used to store in a register. We also give the Danbury number as well. So Danbury number is, it's like it's a 32 and 2, it's become 30. It's become 34. So Danbury number is 34 for 1 marks that we have. The working speed, the lot of working space given by you, examiner, that is in front of you. Next, it's the C part, is saying that if the air conditioning system detects an error, it displays an error code. The error code is displays the hexadecimal number. Okay, the binary number for each error code is stored in the register. So give the binary number that is stored in a register that display the error code 5-1. It will be 5-1. Must be considered. It will be 5-1. You must remember that if you are having the Danbury hexadecimal number, so it will be equal to the 4 binary digits. It will be equal to the 4 binary digits.
4 binary digits. So there is a 51. 51 means this is a 5. This is a 5. So 0, 1, 0, 1. It will become 5. And what about 1? It's 0, 0, 0, 1. So you can write down over here the same thing. 0, 1, 0, 1. That is 5. And 1, 0, 0, 0, 1. It is 1. Next, that you are having E3. What does mean by E? E is become 14. 14 means you must be write down. Let's suppose 1, 2, 4, 8. 14. 1, 1, 1, 0. It's become 14. Okay. एक्चुअली ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि आप लोग कुछ नए स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो इसको सॉल्व करने के लिए. प्रीवियस हमारे स्टूडेंट तो अभी तक टाइगर बन चुके होंगे, ठीक है. बट मैं बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मोहिब और फाजिल से भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि वो लोग भी सॉल्व कर रहे हो. बेटा, आर यू गिविंग द आंसर विद ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल? Come on, Fazil and Mohib, you must participate, my boys. Come on, okay, in the chat box as well. Yes, you are writing up on a paper. That's good. Must give the answer as well over here. Whatever that you are having the answer must be shared with us. Good. So 14. 14 means 1, 1, 1, 0. And then 3. 3 means you are having 2 ones at the end. That become ones. 3. So 1, 1, 4, 1 marks that we have secured this one. Next, give the hexadecimal number that is displayed when the binary number now that you are having. Yes, thank you. I got it. I got it from you, the answer. That is 8 and 2. That is 8 and 2. For 1 marks that we have done. Okay, now saying that if the owner of the shop wants to make the room very cold, she may need to enter a negative Danbury number. The negative Danbury number could be represented using 2's complement. If 2's complement, 8-bit binary integer would be stored the -5 temperature. Show you're working. Means -5 that you need. So first of all, what you will do that you will take the 5 positive one. What is the positive one? That is 1, 0, 1, 0. What is this? This is a positive one. Na? Okay, good. That is a positive one. So you have to be make it after the conversion. So in first step, you will change all the numbers into first complement. Mean आप इसको inverse कर दें. क्या कर दें? Inverse कर दें. अच्छा, इसके बाद आप क्या करते हैं बेटा? इसमें हमने क्या करना है? इस नंबर में हमने +1 कर देना है फॉर 2's कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए. तो 2 स्टेप्स में बेटा हम इसको आंसर को कन्वर्ट करते हैं. 2 स्टेप्स में इसको परफॉर्म करते हैं. ओके, तो क्या आंसर लिख दें? +1 जो है बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास? 0 + 1 1 1 ऐसे ही आ जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू जो है बेटे इट विल बी कम एज इट इज. For 2 marks, bete, that we have performed. जी बेटा, यहां तक all clear? If there is any confusion, you can ask fast. That's good. That's good. Okay, okay. Okay. So we are moving forward. Okay. कह रहा है कि एयर कंडीशन सिस्टम आप यूज कर रहे हैं सेंसर एंड अ माइक्रोप्रोसेसर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ रूम एट द कांस्टेंट लेवल. तो अब ये बताइए, टेक वन बॉक्स टू शो वेदर द सेंसर इज एग्जांपल ऑफ इनपुट, आउटपुट और द प्रोसेसेस. So it's give the information, it take the reading from the surroundings, it takes the measurement from the surroundings, so it will be the input. So it's giving something, some data to the computer. और किस फॉर्म में डाटा देता है ये कंप्यूटर को? किस फॉर्म में डाटा ये कंप्यूटर को देता है? एनालॉग वैल्यू देता है. एनालॉग वैल्यू उसके पास आती है, फिर ये इसको कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग एडीसी और डिजिटल वैल्यू जो है देन माइक्रो प्रोसेसर को देता है. सो
is an input. Is an input. ठीक है जी, आगे चलता हूं. कह रहे हैं the temperature sensors continuously sends analog data to the microprocessor. That okay, that's fine. That we were saying. This data is then converted to the digital. Explain how the microprocessor keeps the temperature of the room at the constant level. भाई constant level पे कैसे रखता है? Constant level पे ऐसे रखता है कि let's suppose आपके पास जो sensors है, आपके पास जो sensors हैं, वो रीडिंग देते हैं किसको? माइक्रोप्रोसेसर पे. माइक्रोप्रोसेसर का काम क्या होता है? प्रोसेस करना और नेसेसरी एक्शंस परफॉर्म करना. नेसेसरी एक्शन परफॉर्म करना. ठीक है. उसके बाद अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई चीज है ना आउटपुट में, तो वो एक्चुएटर होता है. ठीक है. अच्छा, तो रीडिंग इसके पास जाती है माइक्रोप्रोसेसर के पास, तो इसके पास ऑलरेडी कुछ वैल्यूज प्रोग्राम्ड पड़ी हुई होती है. तो उन वैल्यूज के साथ क्या करता है, जो वैल्यू आती है उसके साथ उन वैल्यूज को कंपेयर करता है. उन तमाम वैल्यूज के साथ कंपेयर करता है. जो वैल्यू जिसके साथ मैच हो जाती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? एक्शन परफॉर्म कराता है माइक्रोप्रोसेसर. क्लियर है भाई ये वाली बात? ये ऑटोमेटेड सिस्टम में हमारे पास यही तीन चीजें हैं जो मिलकर सारा काम कर रही होती है. अच्छा जी, तो हम इसको अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं. ठीक है. तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? अच्छा, ये इसमें ना बहुत सारे वर्ड्स आप लोग ले सकते हैं. माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करता है, माइक्रो प्रोसेसर थ्रेशोल्ड निकालता है वैल्यूज का. ठीक है. कुछ भी आप ले सकते हैं. तो आप लिखिए द माइक्रो प्रोसेसर क्या कहता है? थ्रेशोल्ड द वैल्यूज और कंपेयर द वैल्यू. चले दोनों लिख लें. कंपेयर करता है द वैल्यू, कौन सी वैल्यू? ठीक है. फ्रॉम जो सेंसर ने भेजी होती है वैल्यू, सेंसर टू स्टोर अ वैल्यू. ठीक है जी. अच्छा, अगर वैल्यू मैच हो जाए तो चलो पहले कहते हैं अगर वैल्यू जो है लेट्स सपोज मैच हो गई तो वो क्या करेगा? कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. ठीक है. अगर कोई वैल्यू मैच ना हो तो वो क्या करेगा? द माइक्रो प्रोसेसर एक सिग्नल सेंड करेगा. माइक्रो प्रोसेसर सेंड अ सिग्नल ओके. सो ओके, तो क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर? क्या करेगा? सेंड करेगा सिग्नल को. किस लिए? टू इंक्रीज करने के लिए वैल्यू को या डिक्रीज करने के वैल्यू को. इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू. अच्छा जी. अच्छा जी, एयर कंडीशन जो है, व्हाई देयर इज एन एम्बेडेड सिस्टम या एक माइक्रोवेव ओवन या लेट्स सपोज एक वॉशिंग मशीन, व्हाई देयर इज एन एम्बेडेड सिस्टम? अच्छा जी. अच्छा भाई, हम लोग लास्ट में बना रहे होते हैं. ठीक है. मतलब पेपर से एक दो दिन पहले जो है वो चीजें सारी बच्चों को दे रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा. अच्छा, इसकी रीजन ये है कि बेटे ये जो हमारे पास सिस्टम है वो एक कोई ना कोई एक डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करता है. तो दैट्स व्हाई एम्बेडेड सिस्टम का काम भी यही है हमारे पास. ठीक है. तो ये एम्बेडेड सिस्टम की डेफिनेशन जो है ना वो ये है कि वो लेट्स सपोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. ठीक है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आपके पास एयर कंडीशन जो है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको लेट्स सपोज
एयर कंडीशन ने आपको रूम के अंदर की बात कर रहा हूं, आपको गर्म हवा देना शुरू कर दी लेट्स सपोज, ठीक है। अगर लेट्स सपोज सर्दियों में चलाएं, गर्मियों में चलाएं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो ठंडी हवा की बजाय गर्म हवा आपको देगा, नहीं ना। मतलब ये है कि वो डिफरेंट टास्क तो नहीं कर रहा ना, तो वो क्या कर रहा है, वो एक बेसिकली एक डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। क्या एम्बेडेड सिस्टम परफॉर्म परफॉर्म वन डेडिकेटेड टास्क। ठीक है जी। सो या हम ये भी कह सकते हैं लिमिटेड फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है, ठीक है। सो इसको क्या होता है, सो इट इज डिफिकल्ट टू चेंज इट्स फंक्शन। तो 2 मार्क्स के लिए बेटा, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लेंथी क्वेश्चन पूछ लिया उसने हमसे, ठीक है। कह रहे हैं a computer with a von Neumann architecture has a central processing unit, okay, that carries out the fetch, decode, execute cycle. Give the name of the first register that is used in a fetch part of the cycle. ठीक है। अच्छा, fetch execution cycle जिन बच्चों ने हमारे साथ पढ़ा है, हमने डायग्रामेटिकल फॉर्म में उसको बनाकर देखा है। तो हमारे पास बेटा जो फर्स्ट फॉर्म होती है दैट इज, अच्छा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज प्रोग्राम काउंटर। पीसी स्टैंड फॉर प्रोग्राम काउंटर। आप लोग कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे, इसको कुछ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कह रहा है द सीपीयू हैज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ सीयू, मींस कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू। कंट्रोल यूनिट का आप लोग क्या बताइए, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल, रोल बताइए इसका रोल क्या है। तो सबसे पहला काम तो इसका ये है कि ये क्या करता है, बेसिकली इट यूज टू कंट्रोल द सिग्नल्स, ठीक है। इट्स यूज टू कंट्रोल द, आप इसको इस तरह समझिए जिस तरह आपके पास ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर है, वो रोड पे खड़ा होकर क्या कर रहा होता है, ट्रैफिक को लेट्स सपोज रेगुलेट करवा रहा होता है, ठीक है। किसने फॉरवर्ड होना है, किसने मूव करना है, किसने स्टॉप कर देना है। तो इस तरह आपके पास अपने सिस्टम के अंदर ये क्या करता है, सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, सिग्नल्स टू द अदर कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू, अदर कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, ठीक है। अच्छा, कैसे कंट्रोल करता है ये भी बता दें, बाय यूजिंग, कौन सी बस के थ्रू करता है, कंट्रोल बस, ठीक है। कंट्रोल बस क्या होती है भाई, कंट्रोल करती है, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फंक्शंस को, सिस्टम को, ठीक है। और ये क्या होती है, इसके अंदर आपके पास जो विड्थ है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस विड्थ इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। ये आपके पास बाय डायरेक्शनल होती है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ बेटे ये इंस्ट्रक्शंस को डी कोड भी करती है। सो नेक्स्ट एक और बात भी साथ इसके हम लोग लिख सकते हैं, इट मैनेजेस द डाटा, ठीक है, इट मैनेजेस द फ्लो ऑफ डाटा। क्या करता है, डाटा के फ्लो को मैनेज करता है एंड डी कोड द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो गिव द नेम ऑफ द रजिस्टर दैट इज अ पार्ट ऑफ सी यू। तो हम उसको बोलते हैं करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। व्हाट इज दिस, दिस इज करंट इंस्ट्रक्शन register, that is called CIR. For 1 marks. Okay, the computer has a primary storage. One example of primary storage is cache.
other saying that take one box to show the correct statement that describe the purpose of cache. बेसिकली बेटा कैश जो है ना, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं फास्ट फ्रीक्वेंट यूज इंस्ट्रक्शन. ये क्या करता है, आपकी इंस्ट्रक्शन को फास्ट कर लेता है. यूजुअली रैम तो आपके सिस्टम में होता है जो कि लेट सपोज क्या कर रहा होता है, बेटे don't pass such like comments in a chat, otherwise you will be dropped from the class. Okay, this is the class. If someone giving the answer, this is not your headache. ठीक है, तो बेटा क्लास में हमने इसको डिटेल में काफी डिस्कस किया कि यूजुअली रैम की जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी स्लो होती है, तो फिर कैश क्या करता है, फ्रीक्वेंट कर देता है, उस स्पीड को बढ़ा देता है कि इंस्ट्रक्शन जो लेट सपोज हमारे पास रैम के पास जो भी मतलब कंप्यूटर के पास माइक्रो प्रोसेसर के पास जो इंस्ट्रक्शन जा रही होती है वो फिर फास्ट मूव करना शुरू होती है ड्यू टू द कैश. सो इट स्टोर फ्रीक्वेंट यूज इंस्ट्रक्शंस. ठीक है जी. So 1 marks. Give one other example of primary storage. Identify the type of data your example would store. Okay. Give one example of primary storage. प्राइमरी स्टोरेज के लिए भाई वन एग्जांपल जो हमारे पास जो है वो हम कौन सी दे सकते हैं बेटा. हमारे पास लेट्स सपोज प्राइमरी स्टोरेज और डाटा की बात हो रही है. ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास रैम है, ठीक है, या हमारे पास रोम है, ठीक है, या हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है. तो रैम के लिए हमारे पास जो डाटा होगा लेट्स सपोज वो क्या होगा, वो प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर होंगे, वो इंस्ट्रक्शंस होंगे. ठीक है, रोम के लिए हमारे पास, रोम के पास किस तरह का डाटा होता है, मतलब रैम कब काम आती है, जब बेसिकली आपके पास कोई भी करंट सिस्टम जो है वो वर्किंग कर रहा हो तो वो रैम के अकॉर्डिंग होता है. रोम किस लिए यूज होता है, फॉर द स्टार्टअप. ठीक है, मतलब आपके सिस्टम को ऑन करने के लिए हम उसको बोलते हैं रोम के पास होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ठीक है, तो बूटअप करने के लिए, बूट स्टार्टअप करने के लिए आपके पास रोम होती है और रैम जो है करंट इंस्ट्रक्शंस को डील कर रही है. तो हम लोग लेट सपोज दोनों ही को लिख देते हैं ताकि आपके पास आसानी हो जाए और थोड़ा सा. ठीक है, रैम का डाटा बेटा क्या होगा, बेसिकली आपके पास आप ये बोलें कि प्रोग्राम्स, ठीक है, दैट करंटली इन यूज. रोम. ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे इसके अंदर बूट स्टार्टअप, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या आप लोग बोलते हैं कि स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होती हैं. ठीक है, या बायोस लिख दें. ठीक है, दोनों में से एक चीज लिख सकते हैं. तो या आप मेंशन करते हैं बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ठीक है भाई, यहां तक कोई परेशानी. जी अब्दुल रहमान, एनी प्रॉब्लम. चलें. ओके. Okay, saying that the computer also have a secondary storage, so we need to give them type of storage, secondary storage. It burn pits and land. जब भी बेटा इसका pits and land का जिक्र हो तो आपने समझ जाना है कि ये हमारे पास किसकी बात कर रहा है. ये बात कर रहा है ऑप्टिकल स्टोरेज. ऑप्टिकल स्टोरेज से मुराद क्या है, सीडी एंड डीवीडी. तो सेकेंडरी स्टोरेज की टाइप को हमने बताना है तो हम उसको बोलेंगे दिस इज एन ऑप्टिकल. ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज कौन सी होती है हमारे पास, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे. It uses control gates and
फ्लो गेट्स, गेट्स की जब भी बात हो बेटा तो हमारे पास ये क्या कौन सी ड्राइव होती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, एसएसडी जो हमारे पास होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इट यूजेस NAND और NOR टेक्नोलॉजी, इट्स द सेम। Next, the surface of each platter is divided into tracks and sectors. Tracks and sector basically these are the hard disk drives जो कि हमारे पास कौन सी होती है, मैग्नेटिक होती है। It has a read-write arms that moves a laser across। जब लेजर की बात हो गई, पहले आपको ये कंफ्यूज कर रहा था, रीड राइट आर्म्स बेसिकली मैग्नेटिक में भी होता है हार्ड डिस्क में, लेकिन नेक्स्ट इसने क्या बोला है, मूव्स अ लेजर अक्रॉस अ डिस्क। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वजह से ये कौन सी ड्राइव होगी, दैट इज ऑप्टिकल। ठीक है जी। इट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग ट्रांजिस्टर्स के थ्रू हमारे पास जो है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट एज वेल। नेक्स्ट भाई, saying that data is split into packets before it is transmitted across the networks। 3 डायग्राम्स है पैकेट्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास क्या होता है, सेकंड में हमारे पास क्या होता है, एंड थर्ड में हमारे पास क्या होता है। ठीक है जी। तो आपके पास इसके 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, हेडर, पेलोड एंड ट्रेलर। क्या जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है, दैट इज हेडर, देन पेलोड एंड देन ट्रेलर। बड़ी बात है भाई, 6 मार्क्स के लिए पहले ये क्वेश्चन इसमें से 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का जो बेसिकली आया जाता है। ठीक है, इसने 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ही आपसे पूछा। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमने सेक्शन लिख दिए। उसके आगे कह रहा है कि एग्जांपल बताइए। एग्जांपल में बेटा हेडर के अंदर आपके पास आईपी होते हैं सेंडर एंड रिसीवर के, सेंडर एंड रिसीवर के, सीक्वेंस भी होता है। ठीक है, पैकेट नंबर भी होता है। ठीक है, बाकी चीजें भी होती हैं। अच्छा, पेलोड के अंदर आपके पास डाटा होता है, एक्चुअल डाटा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्चुअल डाटा। ट्रेलर, ट्रेलर में आपके पास एरर रिडक्शन चेकिंग होती है आपके पास। सेकंड, ये इंश्योर करना होता है कि पैकेट जो है वो एंड्स हो गए, कोई और पैकेट तो नहीं रहता। तो आपके पास इंश्योर करता है एरर चेकिंग। दोनों में से कोई एक लिख दिया मैंने, आप दोनों भी लेट सपोज याद देने के लिए दोनों में लिख। ठीक है, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स। ओके भाई, सेकंड चैप्टर से और भी मजीद जो आपके पास है, कह रहा है पैकेट्स कैन बी सेंड अक्रॉस अ नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ data transmission। So explain how data is transmitted in 2 given methods of transmission, serial, full duplex। बेटा जब सीरियल की बात हो रही हो तो हम उसको बोलते हैं डाटा जो है लेट्स सपोज मूव करता है बाय यूजिंग अ सिंगल वायर। सिंगल वायर में जब डाटा जा रहा होता है तो 1 बिट एट अ टाइम जाता है। क्या जाता है, 1 बिट एट अ टाइम जाता है। जो फुल डुप्लेक्स की बात करेगा तो इसका मतलब ये है दे कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। ठीक है, सो हम इसको इसको कैसे मेंशन करेंगे कि डाटा इज सेंट 1 बिट एट अ टाइम, 1 बिट एट अ टाइम जाएगा भाई, मतलब 0 है तो 0 पहले मूव कर देगा। ठीक है, और एक वायर से जा रहा होगा, उसके बाद दूसरा डिजिट जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये आप इसकी एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज आपने ईमेल सेंड की और ईमेल लेट्स सपोज आपको वापस भी मिली। ठीक है, तो फुल डुप्लेक्स हो गया, लेकिन एक टाइम में एक ही मेल गई और एक ही मेल का रिप्लाई आपको वापस आया। लेट्स सपोज इज एन एग्जांपल। ठीक है, सो डाटा इज सेंड, वॉकी टॉकी इसकी एग्जांपल हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये बात कर रहा है हमारे पास सेंड इन बोथ डायरेक्शन की बात कर रहा है एट द सेम टाइम फुल डुप्लेक्स में। तो आपके पास ये न्यूज ब्रॉडकास्ट इसकी एग्जांपल होगी, क्लियर एग्जांपल जो है। ठीक है,
So data is sent one bit at a time by using a single wire. So as well as data can move in both directions. At the same time. So 4 marks के लिए इतना लिखना enough है हमारे पास. Next saying that parallel half duplex. बेटा parallel की बात ये होती है कि एक से ज्यादा वायर्स मीडियम्स के थ्रू डाटा मूव हो रहा होता है. क्या भाई? एक से ज्यादा वायर्स में, मतलब मल्टीपल वायर्स में डाटा जो है वो मूव हो रहा होता है. हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होता है, ठीक है, कि आपके पास वन, जो आपके पास जो भी चीज आप लेट्स सपोज सेंड करेंगे बोथ डायरेक्शन में, वो सेम टाइम में नहीं होगा. मतलब सेंड होने वाली चीज और रिसीव होने वाली लेट्स सपोज जो चीज है, एक दफा लेट्स सपोज सेंड करेंगे और दूसरे टाइम में आप लोग रिसीव करेंगे. इसका मतलब यह है एक ही आपके पास रोड है और आपके पास लेट्स सपोज गाड़ी ने उस तरफ आना भी है और जाना भी है एक गाड़ी ने उस तरफ से. तो लेट्स सपोज एक गाड़ी मूव करेगी और दूसरी वेट करेगी, एक आ जाए तो फिर दूसरी मूव करेगी. ठीक है, इस तरह से. तो पैरेलल हाफ डुप्लेक्स की बेटा हम लोग एग्जांपल इसमें कैसे लिखेंगे कि डाटा इज सेंड डाउन, data is sent multiple bits at the same time by using multiple wires. Multiple wires. Multiple wires. And data can be sent in both directions not at the same time. ठीक है जी. तो ये 4 मार्क्स के लिए बेटा हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन थी जो हम लोग लिख चुके. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सेइंग दैट cyber security company specifies in a security solutions that help prevent hackers being successful. Identify 2 security solutions that can be provided to help prevent hackers being successful. Explain how security solutions that can be provided to the prevent hackers being successful. Explain how each solution helps prevent hackers being successful. तो सोल्यूशन देने हैं आपने. ठीक है, सबसे पहले तो आप लेट सपोज आपके पास ना बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए. लेट सपोज मैं प्रेफर करूंगा कि भाई आप लेट सपोज क्या करें, बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज करें. ठीक है जी. अच्छा, बायोमेट्रिक डिवाइस से आपके पास क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, डिफिकल्ट होगा लेट सपोज कि फेक बायोमेट्रिक डाटा जो है वो लेके कहाँ से है. कितने मार्क्स के लिए? 6 मार्क्स के लिए. तो लेट सपोज दो चीजें जो है वो एक्सप्लेनेशन में वो जरूर होनी चाहिए. ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट. सबसे पहले तो ये बताइए कि उसको क्या रिक्वायर होगा, हैकर को क्या रिक्वायर होगा टू हैव, उसके पास बायोमेट्रिक होना चाहिए ना भाई. किसी का थंब उठा के कहां से ले आए वो. ठीक है, टू हैव बायोमेट्रिक डाटा टू एक्सेस एंड इट इज डिफिकल्ट. क्या डिफिकल्ट है? कि किसी का फेक बायोमेट्रिक डाटा बनाया जा सके. ठीक है, नेक्स्ट आप लोग क्या कर लें, लिमिट आउट कर लें पासवर्ड को. क्या कर लें? पासवर्ड को लिमिट आउट कर लें. ठीक है, आप लेट सपोज फायरवॉल यूज कर लें, एंटी स्पायरवॉल स्पाईवेयर यूज कर लें. ठीक है, तो फायरवॉल इट विल बी अ बेटर टेक्निक. फायरवॉल ले लीजिए. सारी टेक्निक यूज कर सकते हैं लेकिन हमने कोई सी दो लिखनी है ना. ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली, फायरवॉल की एक खासियत ये है कि वो इनकमिंग एंड आउटकमिंग दोनों डाटा को डिस्कस करता है, दोनों डाटा को चेक करता है. ठीक है,
So firewall basically examine yes yes can ठीक बताया बेटा आपने. ठीक है बेटा, राइट आंसर्स ऑल ऑफ यू. दैट्स गुड. ओके दैट्स गुड. अच्छा तो ये क्या करता है, इनकमिंग एंड आउटकमिंग डाटा को एग्जामाइन करता है. ठीक है, एक वर्ड ले लें आप ट्रैफिक का. ठीक है, एज वेल इट कैन ब्लॉक सर्टेन आईपी एड्रेसेस. ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं किस किस्म को ब्लॉक कर सकता है, किसी भी डाटा को दैट इज नॉट मेट ऑन अ सर्टेन लिमिट, ऑन अ सर्टेन क्राइटेरिया वट एवर. ठीक है, ऑन सर्टेन क्राइटेरिया. ठीक है जी, और इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं. ठीक है, टाइम शॉर्ट है, नहीं तो मजीद इसको हम मजीद डिस्कस करते हैं. सर्टेन रूल, सर्टेन क्राइटेरिया. ठीक है, सर्टेन लेट सपोज डाटा, इट कैन ब्लॉक सर्टेन आईपी एड्रेसेस एज वेल. ठीक है, तो बहुत सारी डिटेल है, हम मजीद भी डिस्कस कर सकते हैं. आगे चलते हैं. कह रहा था कंपनी आल्सो हैज अ वेब पेज दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव people awareness of social engineering. Describe what is meant by social engineering. Include an example of social engineering in your answer. अच्छा, अभी सोशल इंजीनियरिंग से मुराद आपके पास ये है कि आपको क्या करते हैं, आपको लेट सपोज इन्वॉल्व करते हैं किसी ऐसी एक्टिविटी में जो लेट सपोज आपके ब्रेन के साथ खेले. ठीक है, तो क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं आपको. ठीक है, और मतलब लोगों को धोखा देते हैं. ठीक है, उनका उनका मकसद क्या होता है इसमें कि आपसे लेट सपोज कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन का गेन करना है. ठीक है, तो मेंशन करते हैं कि हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स रिसीविंग पीपल. ठीक है, एंड हैविंग एम दैट ऑफ obtain confidential इंफॉर्मेशन, डाटा, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, लेट सपोज अगर आप लोग बेटा इसकी एग्जांपल देखें ना, तो आपके पास क्या है, फिशिंग, और फिशिंग की एक टाइप फॉर्मिंग. ठीक है, तो फिशिंग इज एन एग्जांपल ऑफ सच लाइक दैट. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं. कह रहे थे कंपनी website uses both session cookies and the persistent cookies. State one similarity between the session होता है एक सेशन के लिए, persistent होता है जब तक उसको डिलीट ना किया जाए. ठीक है, लेकिन कह रहा है दोनों में एक सिमिलरिटी बताइए. अच्छा, तो आप ये बता दें कि दोनों जो है वो लेट सपोज डाउनलोड होते हैं यूजर के कंप्यूटर पे. बोथ बेसिकली बोथ आर द स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है, बोथ आर टेक्स्ट फाइल. ठीक है, आगे चले एक और लिख लेते हैं, एंड कैन डाउनलोडेड ऑन यूजर्स कंप्यूटर. ठीक है जी, 1 मार्क्स के लिए था, लेकिन हमने 2 चीजें लिख दी हैं इसमें. ठीक है, ताकि आपको भी कुछ ना कुछ चीजें मेमोराइज रहे. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट सेइंग दैट एक्सप्लेन वन डिफरेंस बिटवीन सेशन और परसिस्टेंट. सेशन बेटा आपके पास क्या होता है, आपके पास सिर्फ रैम में स्टोर होती है, जबकि परसिस्टेंट जो है आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होती है, जब तक डिलीट नहीं होती, जब तक आप ना चाहें. ठीक है जी, तो सेशन
cookies are stored for a one session. So one session के लिए आपके पास ये कहाँ store होगा? In RAM. Whereas persistent cookies are stored in SSD, mean secondary drive. ठीक है जी. अच्छा, जब आप वेब ब्राउजर बंद कर दें तो आपका सेशन कुकीज लेट्स सपोज क्लोज हो जाता है, लेकिन प्रोसेशन कुकी क्लोज नहीं होता. सेकंड थिंग आप लोग ये भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट आगे चलते हैं. बेटा कह रहे हैं टेक्स्ट, इमेजेस एंड साउंड आर represents as binary to proceed by a computer. Complete the table by writing the missing terms and description about representing text, images and sound. Character sets. अच्छा बेटा, character set आपके पास क्या होता है? Basically it's the combination of all the unique binary values. ठीक है, जिसके अंदर आपके पास क्या क्या आ जाता है? ठीक है, कैरेक्टर सेट्स के अंदर आपके पास क्या क्या आ जाता है भाई? आस्की कोड्स भी होते हैं और यूनिक कोड्स भी होते हैं. ठीक है, तो इट स्टोर्स all unique characters. ठीक है, और all the means characters. कौन से character? ठीक है, बाइनरी वैल्यूज. क्यों यूज होता है ये बेटा? ये भी याद रखिए, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सिस्टम के लिए, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सिस्टम के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, ये भी साथ से. ओके, नेक्स्ट. दिस इज अ नंबर ऑफ सैंपल टेकन ईच सेकंड. ईच सेकंड की बात आ गई है तो बेटे इट विल कॉल्ड सैंपल रेट. नेक्स्ट, पिक्सेल्स, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट of an image. Smallest part of an image या unit of an image, whatever. Next, resolution. Resolution की एग्जांपल बेटा आप लोग इस तरह से ले सकते हैं, जिस तरह आपके पास एरिया निकालते हैं ना आप, इसी तरह. सो आप ये कहेंगे टोटल नंबर ऑफ पिक्सल जो कि अपेयर हो रहे होते हैं एक इमेज के अंदर. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्या भाई आपके पास? टोटल पिक्सल्स. टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट इन एन इमेज. ठीक है, अच्छा. लेट्स सपोज आप लोग इसकी लेट्स सपोज ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द स्क्रीन, लेट्स सपोज लेंथ ऑफ द फ्रेम ले लें. ठीक है, हाइट ऑफ द फ्रेम ले लें. ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं. लेट्स सपोज रेजोल्यूशन में ऐसे मेंशन कर देता हूँ, आप लोग देखें. लेट्स सपोज मैं कहूँ जी ये लेट्स सपोज 512 है एंड ये 1024 है. ठीक है, तो 512 इंटू 1024 कर दें तो ये आपके पास रेजोल्यूशन निकल आएगा. ये एग्जाम्पल है, ये आपको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है. ठीक है, समझाने के लिए मैंने बताया. Next, this is the number of bits used to represent a color in an image. Number of bits भाई, तो आपके पास इसको bit depth बोलते हैं. क्या बोलते हैं? bit depth बोलते हैं, color depth बोलते हैं. ठीक है, जो आपको आसानी. सो आपके पास आप लोग इसको color depth बोलते हैं, bit depth बोलते हैं, whatever. तो 5 मार्क्स के लिए बेटा very easiest things. ठीक है, next saying that the size of an image file is 1000 bytes. Give the size of an image file in bits. ठीक है, तो आपके पास बेटा क्या है? बिट्स में आपने बताना है. ठीक है, 1000 बाइट्स क्या है आपके पास? 1000 बाइट्स है, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दें? 1000 इंटू 8, तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा? दैट इज 8000 बिट्स. ठीक है, क्योंकि 1 बाइट जो है आपके पास टोटल 8 बिट्स होते हैं. कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं. 8000 बिट्स टू 1 बाइट. ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं बेटा.
नेक्स्ट भाई आपके पास क्या कह रहा है, द साइज ऑफ साउंड फाइल इज 4096 मेबी बाइट। ठीक है, तो गिव द साइज ऑफ फाइल इन जीबी बाइट। तो आप उसमें क्या करेंगे भाई, आप लोग लेट सपोज आप उसको किससे डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे भाई, आपके पास भाई 4096, ठीक है, गीगी बाइट जो है वो कितने होते हैं भाई आपके पास, लेट सपोज 1024, तो 1024 वन सा एंड फोर सा। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आएगा आंसर दैट इज 4 GB बाइट। ठीक है, नहीं भाई, ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सेइंग दैट डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय एआर। ठीक है, तो आप लोग सिंपल 3 मार्क्स के लिए है। ठीक है, कंप्यूटर गेम इज प्रोग्राम टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट द मूवमेंट। ओके जी, सो क्रिएट द मूवमेंट okay, sorry, movement and actions of the computer control characters in games. So describe what is meant by that. So first of all, इसकी basic definition जो है बेटा वो लिखेंगे, basically it is a simulation of intelligent behavior of a humans. ठीक है, intelligent ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके जो फीचर्स है बेटा वो क्या होते हैं, एबिलिटी टू लर्न। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर हैज द एबिलिटी टू लर्न। एक तो बेटा एक्सपर्ट सिस्टम होता है और एक आपके पास मशीन लर्निंग होता है। मशीन लर्निंग में क्या करता है, डाटा से लर्न करता है चीजों को। ठीक है, एबिलिटी टू लर्न, ठीक है, एज वेल एज एबिलिटी टू अडॉप्ट, लर्न एंड अडॉप्ट। ठीक है, अच्छा, फिर इसी बेसिस पे ये क्या करता है, डिसीजंस लेता है। क्या करता है, एज वेल एज मेक डिसीजंस। शॉर्ट लिख रहा हूं बेटा कि ज्यादा चीजें आ जाएं, एज वेल एज मेक डिसीजंस। ठीक है जी, और जो खतरनाक बात इसमें ये है कि ये एक्यूरेसी पे बेस करती हैं सारी चीजें। प्रोबेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है बेटा ये। ठीक है, दैट इज अ वेरी मींस एक्यूरेट थिंग ना। जैसे लेट सपोज ऑयल एंड मिनरल्स एंड सॉल्ट की लेट सपोज आपको ये क्या दे, ठीक है, आपको परसेंटेज बताया इसमें, लेट सपोज एक लिक्विड है इसके अंदर कितना मिनरल है, कितने कौन कौन से मिनरल्स हैं, ये आपको बताया, एक्यूरेसी बताया 99.9%। तो इस हद तक खतरनाक चीज है। Next, saying that explain how the AI can be used to improve the movements and actions of the computer control characters. अच्छा जी, ठीक है जी, तो बेटा इसमें सबसे पहले तो ये क्या करे, मशीन लर्निंग का यूज करे। इट यूज मशीन लर्निंग, इट यूजेस, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, मशीन लर्निंग। ठीक है, इससे ही क्या करेगा, इट कैन कंट्रोल और, अच्छा, इससे पहले एक और चीज डिफाइन करते हैं। ये सबसे पहले क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है जिससे ये लर्न कर रहा होता है। ठीक है, कलेक्ट डाटा अबाउट जो भी आपके पास प्लेयर्स हैं और वो एक्शंस कर रहे हैं, उनका डाटा इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, फिर उसको क्या करेगा,
एनालाइज करेगा उस डाटा को। एनालाइज करेगा डाटा को, ठीक है, और फिर क्या करेगा, एनालाइज द डाटा एंड उससे क्या करेगा, एंड इट कैन लर्न, फिर उसी से ये सीखेगा, ठीक है, कि जो प्लेयर्स हैं वो कैसे मूव कर रहे थे, हाउ प्लेयर मूव्स, ठीक है, प्लेयर ने कैसे मूव किया, तो फिर इससे आसानी क्या हो जाएगी, इट्स यूज टू हेल्प प्रिडिक्ट, मतलब अब जो नेक्स्ट प्रिडिक्शन होगी उसके बारे में भी बताएगा। सो इट कैन टेल द prediction how player will be the next action, ठीक है जी, ठीक है। तो लेट सपोज जितने भी पैटर्न्स वो सक्सेसफुल हो, वो अनसक्सेसफुल हो, ठीक है, इन तमाम को ये क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सेइंग दैट द कंप्यूटर गेम्स इज प्रोग्राम्ड यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज, एक्सप्लेन वन डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड अ लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज आपके पास, सबसे पहले तो ये कहें आप, नियर टू द ह्यूमन है हाई लेवल लैंग्वेज, और लो लेवल लैंग्वेज नियर टू द मशीन है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज आपके पास क्या हुई, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, क्या हुई आपके पास, इजियर टू रीड एंड राइट, इजियर टू राइट, अंडरस्टैंड, debug, etc. Whereas low level language, ठीक है, is difficult, difficult to debug और rewrite and etc. 2 मार्क्स के लिए था तो एक एक डिफरेंस, दो तो डिफरेंस भी लिखते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, नाउ सेइंग दैट the programmer uses translators to translate the high level language source code into machine code, source code into machine code। source code कौन सा होता है, जो लेट सपोज यूजर अंडरस्टैंड कर रहा होता है, कंप्यूटर के ऊपर होता है, यूजर बनाता है, उसको सोर्स कोड बोलता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कोड कौन सा होता है, जो लेट सपोज मशीन कोड होता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड बोलता है, ठीक है। मतलब हाई लेवल से लो लेवल की बात कर रहा है, कह रहा है ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट द सोर्स कोड वन लाइन एट अ टाइम, इसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज इंटरप्रेटर, for 1 marks। Next, saying that translate the source code and will not execute it if errors are found, अगर error found हो जाए, it instead produces a full report, full report की जब बात कर रहा है, so it will be a compiler for 1 marks। Now saying that translate the source code and produces an executable file, so it will be a compiler as well। Yes, interpreter हमें प्रोवाइड नहीं करता एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसको दोबारा ट्रांसलेट करना पड़ता है जब भी उस कोड की जरूरत पड़ जाए आपको। नेक्स्ट, सेइंग दैट स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ द मशीन कोड, मशीन कोड लेट सपोज आपकी एग्जीक्यूशन रोक देता है, कब रोक देता है, व्हेन एन एरर, जब भी कोई एरर आ जाए, तो इसका मतलब है इट्स टॉकिंग अबाउट इंटरप्रेटर। So for 1 marks, so bete, that was a paper of your current years, so that we discuss। So तो ये पेपर बेटा और ये क्लास आज तक यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेपर। तो यहाँ तक कोई बेटा कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम।